Hello everyone. So I think you can see me now. Let's check whether both will be correctly or not. That will check. Yeah, it's fine. Sorry. So I have constraint on the clarity of the board because it's a normal camera, so your board may not look exactly that you want in a rigorous level on something. But this paper deals with atomic clusters where density functional theory is also used and a very important molecular dynamics simulation is used. Okay, so in toy model in molecular dynamics simulation, the energy is constant. Or you can also make anything like temperature can be constant. So I have worked with Lennard-Jones potential system and Sutton-Chain potential system also. Okay. So Lennard-Jones potential system is two-body potential system, but Sutton-Chain potential system is many-body. Okay. So Lennard-Jones is a amazing tool to understand the behavior of particles and molecules. But my perspective that I done the same calculation with Sutton-Chain potential. So I found that Sutton-Chain potential is more efficient to describe the energy, molecules and everything. Okay, why energy? Let's talk about energy. Okay. Okay, so we have diamonds. We have gold, we have graphite. Okay, so every gold and every diamonds and graphite are same. Okay, the same. In the perspective of cost, diamond is very costly because it has a behavior that it reflect light and it looks beautiful. But in my point of perspective, graphite is more expensive. Okay, graphite, the pencil, the वो 2 रुपए 3 रुपए वाला जो पेंसिल लिखते हैं ना, नटराज का, अप्सरा का और डॉम्स का 3-5 रुपए में ही आ जाता भाई एक पेंसिल. अभी भी यही रेट चल रहा है, अगर थोक में लोगे 1 रुपए ही पड़ता है. So graphite crystalline structure is most stable structure in the world. Okay, due to that graphite we move up to graphene layer, and scientists have removed the graphene layer, single layer, monolayer, with the help of thing. Okay, with the help of scientific awareness, technological development. So they labeled in level. So how they did that? Okay, so it was all accident. They put there was suppose graphite. So they put a tape on it, जो चिपकाते हैं ना टेप, जो यहाँ पे भी चिपका सकते हैं कहीं पे भी. तो उस टेप टेक्निक को उन्होंने यूज किया और ग्राफीन का मोनोलेयर, ग्रेफाइट का मोनोलेयर निकाले तो ग्राफीन बन गया. और ग्राफीन का भी जो कॉस्ट है, अगर आपको 1 किलो ग्राफीन चाहिए एकदम प्योर लेवल, तो करोड़ों में भी नहीं मिलेगा. और मिलने का तो सस्ते में मिल जाएगा. पेंसिल को कूट लो, रगड़ दो, ग्रेफीन बन गया. ये साइंटिफिक लॉजिक की बात कह रहा हूँ. हाँ, लेकिन लोग ग्रेफीन को अगर उस टेक्निक से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो टेक्निक यूजलेस है, कोई फालतू नहीं है, सब यूजलेस है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर. व्हाट दिस पेपर आई नीड टू रीड. ओके, molecular dynamics MD simulation of a small Lennard-Jones cluster have given evidence for transition from solid phase to liquid phase. As the energy is increased, this is citation number 1. I will be taking. I will be at the end. I will be talking about the citation. Okay. A variety of studies 2x4. This is again citation. Have examined the dynamical behavior as a function of internal energy or temperature, and observe the magnetic difference exhibit dynamic coexistence of the solid and liquid phase over range of energy. इसका सिंपल हिंदी में मैं समझाता हूँ. इसका मीनिंग क्या है कि मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन के जरिए हम ले
छोटे छोटे क्लस्टर, ओके, एटम्स के क्लस्टर, जैसे कि ये 4 एटम का क्लस्टर हो गया, 4 एटम का क्लस्टर, तो ये एक प्लेनर क्लस्टर में रह सकते हैं। और हम एक वो भी ले लेते हैं जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, जो सब अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो क्वालिफाइड लोगों के लिए है और बच्चों के लिए भी है, अगर टाइम पास करना चाहे तो कोई गलत बात है नहीं। तो देखो भाई, मैंने सभी कॉर्नर्स पे एटम्स को लगा दिया है, मैं यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे भी लगा देते हैं। आई थिंक ऑल कॉर्नर्स आर कवर्ड। So इसको ये metals and molecules have their crystalline structure and they shape in different atomic cluster. So ये पेपर इसी बात को डिस्कस करता है कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और अलग जितने भी स्टेट है, बहुत सारे इंस्टेंट कंडेंसेट हो गया, और आज के डेट में सेमी ग्लास स्टेट, अभी 3 स्टेट्स नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं बचा है, अभी थाउजेंड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हो चुके हैं। भले हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हम एक्चुअली करंट रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे कि एक टाइम क्रिस्टल है, तो भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। आइंस्टीन बोस कंडेंसेट इज द अमेजिंग स्टेट ऑफ मैटर दैट इज अचीव्ड इन द स्पेस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को लोगों ने स्पेस में भी ट्राई किया और लोगों ने बनाया है, सिंथेसिस किया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो इस पर्टिकुलर कंडेंसेट में हमारे जो बोस थे वो बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को आइंस्टीन के पास भेजा कि सर क्या आप मेरा रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं क्या। सो आइंस्टीन थोड़ा इंटेलिजेंट थे, वो समझते थे कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पढ़ा, और फिर जब आइंस्टीन ने पढ़ा तो उनको लगा कि हाँ भाई, इस पेपर में तो बाकी दम है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पेपर है। तो आइंस्टीन ने एक्चुअली बोस के रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। बोस जो थे, बोसॉन्स, इसके नाम पे हम हिग्स बोसॉन जो खोज हुई, तो बोसॉन्स के नाम पे ही हमने उस पर्टिकुलर बोस जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन उनको क्रेडिट मिला। आज के डेट में जितने भी बोसॉन्स हैं वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट बोस के नाम से ही है, ठीक है। मैं पेपर में फिर से आता हूँ, ठीक है। A variety of studies has examined the dynamical behavior as a function of internal energy और temperature। और डायनेमिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मेरी भी एक एनर्जी है, जैसे कि मेरे बॉडी में केमिकल्स फ्लो हो रहे हैं, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूरॉन्स में, तो न्यूरॉन्स में सोडियम सॉल्ट, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी मात्रा अच्छी होती है, तो सोडियम क्लोराइड के थ्रू ब्रेन एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करता है, और लिक्विड स्टेट में होता है ये सब। हम जो आज के डेट में सुपर कंडक्टर खोज रहे हैं सॉलिड स्टेट में, तो मुझे नहीं लगता रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट सुपर कंडक्टर मिलेगा, हमें लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा, क्योंकि ब्रेन पहले से ही एक सुपर कंप्यूटर है। हम बस उसके क्षमताओं को डाउट करते हैं, क्योंकि बचपन से हमें ये कर वो कर, ये खा वो खा, बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद भी हम क्वांटम बाइसिंग कर देते हैं उनका। क्वांटम बाइसिंग मतलब अगर बच्चे शुरू से ही डॉक्टर बॉर्न हुए, उसके बाद वो तो रोएगा ही, क्योंकि वो बहुत ही हाई प्रेशर को झेल के निकला है, तो फिर उसको 1-2 थप्पड़ मार देंगे, फिर उसको वो करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, उसको आग से दूर रहने बोलेंगे। बच्चों को एक्सपेरिमेंट तो करने देना भी नहीं चाहिए, हाँ बच्चों को आग से नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को छोटा सा कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब उनको बड़े बड़े चीज़ ला के दे देंगे, बड़े बड़े खिलौने, लेकिन बच्चों की खुशी चॉकलेट्स छोटे छोटे 1-2 रुपये सिक्के में होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पेपर में। अब टेक्निकल मैं बात करता हूँ। सो टेक्निकल क्या है कि एक सिस्टम का एनर्जी होता है, ठीक है। सो वो एनर्जी बनती है टेक्निकली क्लासिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन आप ध्यान से देखें, ठीक है। दिस पर्टिकुलर सर्कल पार्ट represents the kinetic part, this particular part represents the potential part। एंड वेव फंक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने रिसर्च पेपर में वेव फंक्शन के बारे में
लिखा है, और मेरा मानना है कि जो वेव फंक्शन है वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन चीज है, और दिस इज आल्सो अ पार्ट, ओके, दिस इज टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं श्रोडिंगर इक्वेशन का भी लिखा हूँ, इसके बाद भी हम आगे भी लिखेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है ऑपरेटर, ओके, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2m से मोमेंटम ऑपरेटर बनाया जाता है। डेविड जे ग्रिफिथ आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। डेविड जे ग्रिफिथ क्वांटम मैकेनिक्स के बिगिनर जो अंडर ग्रेजुएट है उन्हीं के लिए ही बनी है, और एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली जो एग्जाम में आने वाला है वो नहीं पढ़ना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई विल बी टेकिंग ऑन दिस डिफेंस इज I decline the Copenhagen interpretation. Okay, this is the first statement, the first conjecture, the first everything, the first hypothesis. I really decline the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन में बहुत साल पहले बहुत सारे वैज्ञानिक, रियल साइंटिस्ट, ऐसे फेक मीडिया इन्फ्लुएंसर वाले साइंटिस्ट नहीं जो आजकल बैठे हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, रील में कि हम साइंटिस्ट हैं, हम ये है, और अब चेहरा भी बदल जाता है कि पहले तो कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन में सिर्फ एक ही फीमेल थी, लेकिन अब वुमेन एम्पावरमेंट भी हो गया है, और अब जो कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है उसका नक्शा ही बदल दिया। रियल साइंटिस्ट लोग तो पता नहीं कहाँ खो गए हैं, उसमें जिनके पास इंटेलेक्ट नहीं है वो कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन को अभी बरकरार रखे हैं। अब हम चलो बात करते हैं कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन क्या था। कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन था कि किसी तरह से, ठीक है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बताना है आपको। द कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन सेज दैट कि ऑब्जेक्ट जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्वांटम ऑब्जेक्ट्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और उनका एक कोई लोकेशन नहीं होता, वो एक सी साथ 4-5 जगह पे रह सकते हैं। उसका स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और पोजीशन भी एक क्वांटम स्टेट है तो वो भी 5-6 जगह रह सकते हैं। सो इसी बेस पे क्वांटम कंप्यूटिंग आज के देश में वर्ल्ड में आई है। लेकिन कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन साफ कहता है कि मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी हूँ, यहाँ पे पंखा है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, पंखा देख नहीं रहा होगा लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये रूम है अराउंड 8 फीट 10 बाई 10 का ही रूम होगा, उससे ऊपर बड़ा रूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं रूम पे, वो आपको नहीं दिखेंगे। सो कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन ये बात करता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स आर क्वांटम पार्टिकल, एंड व्हेन वी लुक, जैसे कि मैं अगर बोर्ड के बारे में देखूंगा तो बोर्ड रहेगा, और जैसे ही मैं बोर्ड के इधर ऐसे पलट दिया तो वो बोर्ड नहीं रहेगा। सो मैं एग्जैक्टली कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन आपको डेविड जे ग्रिफिथ से ही बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा समझाने और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो उसके बाद आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने बोला कि ये लाइफ इतनी रैंडम नहीं हो सकती, लाइफ रैंडम नहीं हो सकती, गॉड डजंट प्ले विद डाइस। सो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को कई लोग अलग अलग एंगल से देखेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो भी चीज़ करते थे, जो भी चीज़ सोचते थे या जो भी चीज़ लिखते थे, उनके दिमाग में एक लॉजिक, एक प्रैक्टिकल आइडिया, एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट, टॉय मॉडल तो कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि आज के पूरे साइंटिस्ट हमारे इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉय मॉडल ही बना रहे हैं, और इसीलिए बच्चों के खिलौने बढ़ रहे हैं। टॉय मॉडल से तो टॉय मॉडल ही मिलेगा ना, टॉय मॉडल कभी भी सही नहीं होता है। तो इस पेपर में मैक्सिमम ल्यूमिनो एक्सप्लोरिंग स्मॉल एटॉमिक क्लस्टर, इस पेपर में टॉय मॉडल की बात की है कि एनर्जी कांस्टेंट होता है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली मैं तो कभी भी टॉय मॉडल नहीं बनाता हूँ शुरू में। टॉय मॉडल क्यों, टॉय मॉडल तो ये बन रखा है, ये पेपर ही तो टॉय मॉडल है। अब मुझे अगर नॉवेल्टी चाहिए तो मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा जो इस पेपर को भी सरपास करे, इस पेपर से बेहतर हो, इस पेपर को सर्वाइव करे, इस पेपर के स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दे, क्योंकि मैं इसी पेपर को तो साइड करके अपना पेपर बनाऊंगा ना। तो यहाँ पे इस पेपर में लिनियर जोन्स पोटेंशियल है तो वो तो हमने कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया।
और अगर हमें नॉवेल्टी चाहिए तो हम सेम पेपर को स्टूडेंट चेन पोटेंशियल से रिपीट करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यही होता है, ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं टोटल एनर्जी, इसी को ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब होता है कि अगर हम 10 बॉल को ले लें, 10 बॉल को, जैसे कि ये देखो फुटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, 10 बॉल और दिखा देता हूँ, मेरे पास और फुटबॉल भी है, ये देखो एक और फुटबॉल भी है। तो इन 10 अभी तो इसमें देखो कितने बॉल्स हैं, एटम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो हम इन बॉल्स को कैसे जमाएं कि लोएस्ट एनर्जी अचीव भी हो जाए और वो सिमेट्रिकल भी दिखे। तो उसका तरीका तो आपको सिंपल दिख गया ना कि एक क्यूब लेना है, क्यूब के चारों कॉर्नर में लगा देना है, तो 8 एटम्स का जो क्लस्टर बनेगा वो बहुत ही स्टेबल क्लस्टर बनेगा। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात है, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या फिर क्वांटम पार्टिकल ऐसा नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स हर पार्टिकल के लिए भी अप्लाइड है, एक पेड़ के लिए भी अप्लाइड है, एक मून के लिए भी अप्लाइड है, एक अर्थ भी अप्लाइड है। थोड़ा तो सांस ले लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है कैसे। थोड़ा रुकते हैं, आराम लेते हैं, हम कट नहीं करेंगे, वीडियो को एज यूजुअल रहेंगे क्योंकि नेचुरल होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग कट कॉपी पेस्ट करके बातों को इधर का उधर कर देते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स देखिए कि राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके वीडियो को काट के वो पार्ट जिसमें फनी है उसको हम सामने रख देते हैं। हाँ, फिर मोदी जी भी कुछ कहते हैं तो उनके भी वीडियो को काट के फनी वाला रख देते हैं। तो ये सब लेफ्ट राइट विंग का विचारधारा है। हम पॉलिटिक्स थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम बैक टू कॉन्सेप्ट आए। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लोज्ड पैकिंग है, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में एफसीसी बीसीसी ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, आराम से नेट में पढ़िएगा, इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छे बुक्स अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग। आप आर्थर वेजर पढ़ सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स बाय लिप्सिट लॉन्डाउ की सीरीज पढ़ सकते हैं, या फिर कैम्ब्रिज मोनोग्राफ के भी पेपर्स पढ़ सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए, क्योंकि ये तो वीडियो है ना, हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम जो समझाएंगे वो नेक्स्ट ये है कि कैसे ये 8 एटम्स जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो 8 एटम्स हैं वो कैसे टेक्निकली डिजाइंड है। एक मिनट देख लेता हूँ कैमरा ऑन है कि नहीं अपना। ओके, ऑलराइट, दिलबाग सिंह, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी कीजिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आऊँगा। CSIR नेट, JRF जो भी एग्ज़ाम्स है उसके फ्री कोचिंग ऑनलाइन ही रहेगी। आप वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अभी तो ये साइंटिफिक पेपर है तो वो भी हम करेंगे, ठीक है, आप आराम से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस लीड्स टू डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर in contrast to the behavior of bulk matter for which the freezing and melting temperature coincide। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर coincide हो जाता है। तो आप देखे होंगे बॉइलिंग का प्रोसेस देखना कि वाटर को आप 100 डिग्री तक बॉईल करोगे ना, उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता है कुछ समय तक, वाटर एकदम उबलते रहता है पानी। हाँ, ये हम हिमालय में की नहीं बात कर रहे हैं, प्रेशर कुकर की बात नहीं कर रहे हैं। और एक बॉयल में देखिएगा कि आप पानी को उबालिएगा, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप थर्मोमीटर लगा लेना या कुछ भी लगा लेना,
थर्मोमीटर, तो उसका कुछ समय के लिए टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर वो बॉईल करते रहेगा, स्टीम उड़ते रहेगा। आप तो यह सब कुछ देखे हो ना, ये तो समझाने वाली बात है नहीं, और एक्सपेरिमेंट भी कर लेना। सो इसी को कहते हैं इवापोरेशन, बॉइलिंग, इवापोरेशन। सो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, किसी लिक्विड के वाटर का फेस चेंज हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कांस्टेंट टेम्परेचर में इसलिए रह गया था क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं वो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड्स ही नहीं टूट रहे हैं। यहाँ पे वाटर H2O की तरह ही H2O के फॉर्म में ही वाष्पित हो जा रहा है, हवा में चले जा रहा है। तो मैं देखा हूँ कि मेरे वीडियो में मैं पानियों को डालता, पेड़ों को पानी दोपहर में भी डाल देता हूँ, क्योंकि ये बात यह है कि आपने अगर पेड़ों को 10 लीटर पानी पिलाया दिन में, तो पेड़ इतने ईमानदार हैं और इतने सही हैं, वो आपको 10 लीटर पानी वापस कर देंगे दूसरे दिन। कैसे? मैं तो कभी कभी 50 लीटर भी पिला देता हूँ अपने प्लांट्स को, पेड़ को, कि मुझे पता है कि वही तो स्टोर करके रखेंगे पानी को। पेड़ है आपके, मेरे क्वांटम मैकेनिकल पेड़ देखे होंगे वीडियोस में, तो वो जो पेड़ है वही तो टेक्निकली पानी स्टोर करे ना। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम पॉन्ड्स तो बना ही रहे हैं। यहाँ इस हमारे बस्ती में पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, जहाँ लोग मछली पालन भी करते हैं, अलग अलग चीज़ों से वो करते हैं, लोग नहाते भी हैं। और ये होना अच्छी बात है क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। बेंगलोर का देखिए, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। मुंबई में जो फ्लैट्स हैं उनके दाम इतने बढ़ गए हैं, मत पूछिए। तो हम फिर से बैक टू द पेपर आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा जो समझाने का वो था कि बिहेवियर ऑफ बल्क मैटर विच इज रेजिंग एंड मेल्टिंग। तो बल्क क्वांटिटी क्या है, बल्क मैटर क्या है? अगर आपको 4 हाइड्रोजन के एटम लाने बोलूँगा तो 4 हाइड्रोजन के एटम वो बहुत ही छोटे होंगे, वो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिख पाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने ये मैं छोटा सा चौंक रख दूँ ना, तो वो 10 किलोमीटर ऊपर दिखने लग जाएगा, माउंट एवरेस्ट से बड़ा दिखने लग जाएंगे। ये देख छोटा सा चौंक, इतना पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनता है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से। डी ब्रॉगली ने सपोज किया कि एवरी पार्टिकल इवन इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। सो इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके बाद लोगों ने कि तो मतलब चीज़ों को बढ़ाया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैसाचुसेट्स और कैम्ब्रिज के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की मदद से एटम्स को यूज़ करके भी मूवी बना दिए। 4 एटम्स को यूज़ किए, एक मूवी बना दिए, 10 एटम्स को यूज़ किए, मूवी बना। लेकिन एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल है। हम आज तक एक सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर पाए। सिंगल एटम हाँ कर दिए हैं, लेकिन वो साइंटिफिक टेक में है, वो पब्लिकली रिलीज नहीं हो सकता। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसको सिंगल एटम अगर हाइड्रोजन दे दोगे किसी को कि हाँ ले भाई सिंगल एटम ये हाइड्रोजन है, तो पहले तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो तो बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा। तो फिर से हम पेपर पे ही आते हैं। In this paper, we study the dynamics of small clusters of rare gas atoms as a function of average kinetic energy or temperature, and examine the variation of maximum Lyapunov exponent MLE. The MLE increases solid light to liquid light phase, and this offers characterization of phase transition. So इसका मतलब ये है कि इस पेपर में हम स्टडी कर रहे हैं कि बल्क एटम यानी कि 1 कुंटल अगर एटम है, 1 कुंटल एटम है और 4 एटम हैं, तो दोनों के बीच में बल्क एटम के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, काइनेटिक एनर्जी, ये जो इसको ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा से इसमें फूंक मार दूँ तो अब यहाँ से करोड़ों एटम्स यहाँ से चले गए हैं। ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरे फूंक मारने से ही हवा निकला, इस पर्टिकुलर में एटम था तो वो चले गए। और यहाँ फैन चल रहा है, ये भी एक्चुअली में फैन कोई आविष्कार है, ये तो बहुत बड़ा आविष्कार है, फैन तो बहुत बड़ा आविष्कार है। ये क्या कर रहा है, करोड़ों एटम्स जो एयर में है उसको कट कर रहा है, उसको सर्कुलेट कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। ये भी तो एक सिस्टम है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है,
ठीक है, पहले राजा ज़माने में पंखा हुआ करते थे, ऐसे ऐसे हिलाते थे पंखों को, लेकिन आपका ज़माना बदल गया है, ये फ़ैन है। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुआ तब ये फ़ैन भी चले जाएगा, ठीक है, फिर इस फ़ैन का कोई यूज़ नहीं हुआ। तो मैं पेपर में यही बताना चाह रहा था कि एक अगर हमें कोई कुछ डेंसिटी फंक्शन थ्योरी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, आज इस पेपर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। There has been considerable work on such dynamics indicator, most notably by Berry and co-worker, who have looked at details at a variety of quantum. The sum of all positive Lyapunov exponent, this quantity increases monotonically and smoothly while the temperature of energy as a phase changes. However, detailed information can be obtained regarding on the understanding of potential energy. तो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर हमको एक एटम का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालना है, तो उस चीज़ के लिए हमें उस सिस्टम का एग्जैक्ट एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। क्लस्टर जो निकल क्लस्टर्स होते हैं उनके जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी -3.1415 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं 6-7 एटम्स के, और बल्क के भी उसी के आसपास ही रहते हैं। क्योंकि बल्क में जो हमको जो नेचर ने दिया है, जैसे कि नेचर ने पत्ते दिए, पौधे दिए, पेड़ दिए, हल्दी दिए और हर कुछ नेचर। सो नेचर एक बहुत बढ़िया सिमुलेशन है, और ये सिमुलेशन कौन किया कौन नहीं किया मैं उसका चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन हम बैक टू द पेपर, इसमें बेरी और इन्होंने अपना अपना पेपर दिया है, कोलमोगोरोव-सिन्नाई केस एंट्रोपी, द सम ऑफ पॉजिटिव लीनियर एक्सपोनेंट। ओके, सो अब एंट्रोपी की बात आ गई ना, तो मैं आपको एंट्रोपी समझाता हूँ। एंट्रोपी क्या है? आप अक्सर देखे होंगे कि एक जो व्यक्ति रूम को बहुत ज़्यादा सजा के रखता है, लाइब्रेरी की तरह, किताब को लाइब्रेरी की तरह बना देता है, और उसका रूम एकदम क्लीन रहता है, और फिर उसके रूम पे बहुत सारे दर्पण होंगे, मेकअप के सामान होंगे। ये फीमेल्स एंड फीमेल्स में भी यही सब रहता है। मेकअप तो सब करते हैं, लेकिन मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, वो लोग कभी बुक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो बुक कभी ओपन ही नहीं होता है। जो कि वो बुक ओपन करने जाएंगे तो उनका एंट्रोपी बढ़ जाएगा ना सिस्टम का। तो ये रूम है, ये रूम में हवा बहुत अच्छी हवा चल रही है, और इस यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसका एंट्रोपी घटता हो। एंट्रोपी जैसे ही आप जिस दिन जमाओगे चीज़ों को, उस दिन एंट्रोपी घट जाएगा, लेकिन जैसे ही 4 दिन होंगे वो रूम फिर से बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक इंसान का जो एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितना इंटेलिजेंट उतना ज़्यादा एंट्रोपी। तो अब हम इसको चीज़ों से रिलेट करके देख लेते हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन थिंग है। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो फाउंडेशन है वो क्या कहता है कि हमारा विचारधारा, हमारा सोच, हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। इसको हमने बांध दिया है लोगों के उसको क्या कहते हैं, हो सकता है कभी कोई झूठ बोला हो, या कोई कभी 1-2 रुपये का पेंसिल चुरा लिया हो, इस कारण लोगों को हम बांध देते हैं, उनको अपनी विचारधारा थोपने में लग जाते हैं। सो जो अपनी विचारधारा जो थोपने में लग जाते हैं वो एक्चुअली में लाइफ तो अच्छी चीज़ लेते हैं, लेकिन एट द एंड वो फिर भी रियलाइज़ करते हैं कि अरे यहाँ पे मैं गलत था, वो सही था। क्योंकि अपनी विचारधारा किसी को थोपना गलत बात है। जैसे मैं जो बता रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये टेबल है, चेयर है, मून है, ये क्वांटम पार्टिकल है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल काम कर रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम को वो करने में, वो पोटेंशियल टेक्निकली कुछ इस टाइप का है, -G m1 m2 by small r दिस है डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे पावर जो है वो फ्रैक्शनल रहेगा, फ्रैक्शनल। तो ये जो पोटेंशियल है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, जिसने हमें क्वांटम मैकेनिकली इस अर्थ में बाउंड कर दिया है। अब मैं जब उड़ने की कोशिश करूँगा, मैं उड़ पाऊँगा क्या? मेरी वेट है 68 kg, मैं कोई विंग्स लगा के तो फड़फड़ा के उड़ पाऊँगा क्या?
नहीं उड़ पाऊंगा, मैंने चेक किया है, नहीं उड़ पाया मैं। अभी तो चेक कर रहा हूँ, अभी तक आपके सामने चेक कर रहा हूँ, मैं उड़ पा रहा हूँ क्या बताओ। मैं जंप करूंगा तो नीचे प्रॉब्लम हो जाएगा, जंप नहीं करेंगे, कोई इंसान उड़ नहीं सकता भाई। हाँ उसको एरोप्लेन में चलाओ फिर वो उड़ जाएगा, ठीक है। जो मिथ है उसको मैं ब्लस्ट कर रहा हूँ। मिथ ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, हम जो इंसान हैं वो बहुत ही इस यूनिवर्स के अभी तक जो हमारा अर्थ है उसमें बेस्ट स्पीसीज हम हैं। लेकिन बेस्ट स्पीसीज होने का मतलब ये नहीं कि हम चिड़िया डायनासोर या छिपकलियाँ, आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये जो छिपकली हैं वो डायनासोर प्रजाति के हैं। मतलब छिपकली जिस दिन, और आज भी डायनासोर जिंदा है उसके अंदर, इस अर्थ के अंदर, ये एक जोक है, ठीक है। तो जिस दिन इन छिपकलियों को दिक्कत होगा उस दिन ये अपने मदर को कॉल कर देंगे और पानी और इस अर्थ को घुमा देंगे, ठीक है। अर्थ क्वेक आ जाएगा, नेचुरल कैलेमिटी आएगा, क्योंकि छिपकलियों को भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं कमरे में। पेपर के नेक्स्ट आगे आते हैं। बात हुई थी एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी, सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड स्टेट में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, गैसेज स्टेट में और ज़्यादा होगी, और उस रूम में पंखा चला दिया तो और ज़्यादा होगी, उस रूम में एटॉमिक बॉम्ब रख दिया तो और ज़्यादा हो जाएगी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। सो आप एक ओपेनहाइमर मूवी देखना, हाउ एटॉमिक बॉम्ब वाज क्रिएटेड, काफ़ी अच्छा क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ के बेस में है, और उसमें हमारे फेमस टोनी स्टार्क आयरन मैन भी किरदार है। और ये मूवी बहुत ही अच्छा है। जो जब एटॉमिक बम बन रहा था तो सबसे पहले तो एटॉमिक बम बनाने का आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया, फिर जर्मनी में अलग टेक्निक शुरू हुई, जर्मनी में वार हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया पर्ल हार्बर पे, और जापान की कैपेसिटी चाहे कितना भी हो लेकिन उन्हें अमेरिका को टच नहीं करना चाहिए था भाई। अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है, अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है, उसके ग्लोब मेरे रूम पे है, ठीक है, मेरे ग्लोब दिखा देता मैं। तो जापान ने पर्ल हार्बर में पहला हमला किया वर्ल्ड वार 2 में। अब हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कौन किसके साइड था। जर्मनी में हिटलर था, वो पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मदद मांगने गए कि हमें हमारा राष्ट्र बनाना है भारत, और वर्ल्ड वार 2 हुआ। वर्ल्ड वार 2 हुआ, इंडिया आज़ाद हो गया। अगर वर्ल्ड वार 2 में एटॉमिक बम नहीं गिराता अमेरिका तो आज इंडिया आज़ाद नहीं रह पाता भाई। ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश को किसने कमज़ोर किया? अब आप बताइए। ब्रिटिश को एटॉमिक बम ने कमज़ोर किया। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन तो कर रहे थे, और वो अच्छी चीज़ है। ब्रिटिश हमारे राष्ट्र में आए, कॉलोनाइज करके गए, वो कोई हमें लूटे नहीं है भाई, उन्होंने दिया है। अगर आज बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी ट्रेन चल रही है, वो ब्रिटिश ने तो बनाया है। हम इंडियंस क्या बना पाते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिसमें मैनुअल वर्क हो, ऐसे ईंटा को उठा कर रख दिए। हम ज़्यादा साइंटिफिक टेक चीज़ों को इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पाते। हम सिर्फ यूट्यूब में देख लेंगे, कॉपी कर देंगे और बना देंगे। थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, ठीक है, पानी पीना पड़ेगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट। लेकिन ये पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हमको ये पेपर कंप्लीट करना है लाइन बाय लाइन। वाटर 1 मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कितने मिनट का हुआ। अभी 34 मिनट हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड तो फिल हो चुका है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।